So, dear students, when you start each day with a grateful heart, light illuminates from within. Good morning, all. Life is a journey with problems to solve, lessons to learn, but most of all, experiences to enjoy. To enjoy this experience, we should be stressless. To reduce stress, meditation plays an important role in everyone's life. Swami Vivekananda ji said, meditation is a sort of prayer. The highest meditation is to think of nothing. If you can remain without thought, great power will come. So, dear students, today's expert lecture on meditation and our guest speaker is Dr. Bhumika Agrawal. Yukta Mukhi, Miss India and as well as Miss World. Ma Yoga Neelam, first disciple of Osho. Bhayuji Maharaj, a renowned saint. Mr. Aziz Qureshi, Governor of Uttarakhand. Prithvirajji Chauhan, former CM of Maharashtra. Shri Sushil Kumar Shinde, former Home Minister of India. And Devendraji Fadnavis, former Chief Minister of Maharashtra, and many more. So, madam, please welcome. Thank you so much, Kelkar madam. And very good morning to all the newly joined students of first year in SB Jain College of Engineering, Management and Research. A very, very good morning once again. As your Kelkar madam, she has rightly pointed out that if there are no thoughts in our mind, that is the best meditation. We know that thoughts should not be there in mind, but we are in this world, जिसको बोलते हैं ना सांसारिक मोह माया, तो विचार तो अपने मन में आएंगे ही. So let us concentrate on how to do meditation, how to remain thoughtless, and all different aspects of life and meditation through the session. I'm sharing my presentation to you. I hope it is intelligence. So its simple definition is, see here on the screen, emotional intelligence is the ability to understand, use, and manage your own emotions in positive ways so that you can become stress free, you can communicate effectively, you can empathize with others, and you can overcome the challenges of life, and you can remain completely diffused from any kind of conflict. Now, students, just now you have taken admission in SB Jain. Now, I'm sure before finalizing your admission, lot many emotional ups and downs must have been there in your life. You must have gone through different phases where many a times some students, they must have even quarreled with their parents. पक्का कुछ न कुछ स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के, फैमिली के अदर मेंबर्स के साथ कुछ न कुछ आपके और उनके बीच कुछ इमोशनल थोड़ा सा बोलचाल हो गई होगी, अ लिटिल बिट ऑफ क्वारल, बिकॉज हो सकता है योर पेरेंट्स वांटेड टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांच. हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी. हेलो, इज इट दैट मैडम, एम आई नॉट ऑडिबल? Ma'am, you are audible. Ma'am, you are audible clearly. Okay, so बेटा जिसको आवाज नहीं आ रही, it is the problem with that student. So students, I was telling you कि admission के पहले मुझे लगता है 80% के घर में there must be conflicts between you and your parents, between you and your other family members, even between you and your siblings. आपका बड़ा भाई कुछ और बोल रहा है, बहन कुछ और बोल रही है, रिश्तेदार अलग बोल रहे हैं, एंड 50 लोग तो आपके और आपके फैमिली को सजेशंस देने वाले, फुकट की सजेशंस देने वाले वो रहते ही रहते हैं. हो सकता है ब्रांच को लेके देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, कॉलेज को लेके देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट, एंड इवन टू गो इन इंजीनियरिंग देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट. मुझे पक्का पता है बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला होगा नहीं इंजीनियरिंग ही मत कर, यू डू बीकॉम ले ले, या फिर पॉलिटेक्निक कर, या फिर फार्मेसी ले, या फिर अभी मेडिकल के राउंड के लिए रुक, बहुत सारी चीजें. एंड देन अभी भी जितने स्टूडेंट्स है, आई नो 80% स्टूडेंट्स अभी इस कॉलेज में एंटर हो चुके हैं विद देयर विलिंगनेस.
However, still 20% students are such that they have forcefully taken admission. They were not willing to take admission either in this college or in the branch where you are right now. शायद आप में से कोई ऐसा कोई बोल सकता है अपना ऑडियो ऑन करके कि यस मैडम, आई वांटेड टू हैव दिस ब्रांच बट आई हैड टू टेक दिस ब्रांच. कोई ऐसा है जो बोल सकेगा अभी तुरंत? Anybody? Be quick. शायद you are not able to gather the courage to say yes madam, I wanted to take admission in computer science, but as I didn't get the admission, so I accepted electronics and communication, or I accepted mechanical branch, or vice. ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है. It's a request to all the students to keep yourself well. Kelkar madam, will you please help me grooming to all the students? Yeah. Fine. So जब भी आपके साथ ऐसा होता है that you are unable to convince your parents, then there is emotional conflict starts in your mind. और कई बार क्या होता है, या तो आपके पेरेंट्स आपसे कन्विंस होते हैं या आप अपने पेरेंट्स से कन्विंस होते हैं. और कई बार दो यू आर नॉट विलिंग to either take admission in the branch where you are right now, or in the college, or in engineering stream. But anyway, अब आपको क्या सोचना है? Forget about the past. नहीं ना मैडम, मुझे तो रायसोनी में जाना था, मुझे तो VNIT जाना था, मुझे तो नागपुर के ही बाहर जाना था. Forget everything. अब आप आ चुके हैं नागपुर के एसबीजेन कॉलेज में, और जो भी आपकी ब्रांच है दैट इज फाइनल. सो टुडे वी विल स्टडी कि जो आपको मिल चुका है, नाउ यू एक्सेप्ट इट हैप्पीली, पॉजिटिवली. अब आपके मन में आप कोई ग्रज मत रखिए कि यस नाउ यू हैव बीन यू वांटेड टू गो फॉर सीएससी बट you have been admitted in mechanical. Okay, now you have to accept this mechanical branch, you have to accept this college, you have to accept this city and everything. Now accept this positively, happily. शायद भगवान को यही मंजूर था आपके लिए. सो आपको पता है ना, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है. सो नाउ यू एक्सेप्ट कि यस प्रोबेबली इसी में मेरी भलाई थी. हो सकता है आप अगर सीएससी चाहते थे लेकिन अभी आपने मैकेनिकल लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने सीएससी से बी किया होता तो शायद यू वुड नॉट हैव गॉट गुड जॉब. बट आपने अब मैकेनिकल लिया है ना, डेफिनेटली यू विल गेट गुड जॉब, definitely you will have a very bright future, very bright career in whatever branch you have been admitted. तो सबसे पहले आपके मन में जो एक अभी भी ग्रजिंग चल रही है, कुरकुर चल रही है कि नहीं यार मुझे तो उस ब्रांच में नहीं जाना था, मुझे तो उस कॉलेज में जाना था, मुझे तो उस शहर में जाना था, leave it aside. That was past. Now you have been admitted. अब अगर आप जिस चीज में आपको अभी डाल दिया गया है, if you accept it happily, then you will be able to focus better towards your studies. लेकिन अगर मन में अभी भी वो कुरकुर रहेगी तो you won't be able to focus, you won't be able to concentrate on your studies. तो सबसे पहले what I wanted to tell you through my session is accept your branch, college, your city, your teachers the way they are. So whatever has been offered to you either by God or willingly by you, that is for your betterment. ठीक है? Now अब आप थर्ड डेफिनेशन देखिए, given by Aristotle. Anyone can become angry, that is easy, but to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and in the right way, this is not easy. Now many a times you people must be angry, और जो एज अभी आपकी है, you are in adolescent age, and at this age I believe you must be having lot of conflicts particularly with your parents, and many times, and अब बोलते हैं ना young blood, they are mostly angry.
बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है. Sometimes you get angry, maybe with your parents, maybe with your teachers, maybe with your family members, maybe with your neighbors. और पता है कभी कभी तो हमको गुस्सा किस पे आता है? Maybe with the captain of Indian cricket team. कई बार हमको गुस्सा आता है ना, अरे धोनी क्या कर रहा है, इतना इजी बॉल शॉट मार नहीं सकता, इसकी जगह तो मैं होता ना, आई वुड हैव हिटेड अ 6. कई बार हमको कैप्टन पे अननेसेसरीली गुस्सा आता है. कई बार इवन वी फील एंग्री एट अवर गवर्नमेंट ऑफिसर्स और इवन विथ मिनिस्टर्स. हम बोल देते हैं अचानक, अरे क्या कर रहे हैं मोदी जी, अननेसेसरीली ये कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, या कभी कभी हमको लगता है क्या अभी फिर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दिए, इससे तो ऑनलाइन ही चलने देना. हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर स्टिल वी बिकम एंग्री. अब मुझे बताओ, अगर धोनी कभी अच्छा नहीं खेल रहा है, विराट कोहली अच्छा नहीं खेल रहा है, तब भी हमको गुस्सा आ जाता है, जबकि हमारा और धोनी का कोई रिश्ता नहीं है. He is only representing our country and we also belong to the same country. तो हमको कई बार किसी पर भी गुस्सा आता है. कई बार जैसे when you will become an employee, जब आप कहीं जॉब करने लगोगे, so sometimes you may become angry at your boss. कभी कभी हमको हमारे बॉस पर गुस्सा आ जाता है, हमारे प्रिंसिपल पे गुस्सा आ जाता है, अरे कुछ भी करने लगा थे प्रिंसिपल, तो ये क्या कोई बात हुई, ये कोई डिसीजन हुआ. बट नो, We should not become angry. गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से को हमको पीना है. We have to swallow our anger. क्योंकि अगर आपने गुस्सा उस समय व्यक्त कर दिया, नहीं नहीं सर, प्रिंसिपल सर को बोल दिया आपने, नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, आपका डिसीजन बेवकूफी जैसा है, या आपने अपने बॉस को बोल दिया, नहीं ये तो एकदम गलत निर्णय है सर, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आपने अभी ऑफिस का टाइम 9 से 5 कर दिया, जो 10 से 4 था, या 9 से 4 कर दिया, जो भी है आपने चेंज कर दिया, दिस इज नॉट, आई विल नॉट एक्सेप्ट. आप ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज द मोमेंट यू विल अपोज योर बॉस और योर प्रिंसिपल और मे बी योर मिनिस्टर और एनीबडी, you will be thrown out of the society, out of the company, out of the job, out of your college. जैसे अभी आपको बोला गया कि you have to attend orientation program, you have to join at 11:30 for so and so session. कभी कभी आपको लग रहा होगा यार अब भी कॉलेज में एडमिशन ली and immediately our teachers are forcing us, but you cannot say no ma'am, I will not join, I will not attend the session. You cannot. या आप ऐसा नहीं बोल सकते, if you are going outside your house, maybe to a market, maybe to a cinema theater, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, I will not use mask, मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, बीमारी मुझे होंगी ना, तुम कौन होते बोलने वाले, मैं नहीं लगाऊंगा मास्क, I will not follow COVID norms. नहीं, आपको जो बोला गया है यू विल हैव टू डू दैट. बट करते समय कई बार गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, कई बार हमारे प्रिंसिपल सर बोलते हैं मैडम आपको ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता करने का, और लगता है कि दिस इज 100% नॉनसेंशियल वर्क, बट स्टिल वी नीड टू डू दैट, बिकॉज इफ वी अपोज आई विल हैव टू लूज माई जॉब. और नई भी जॉब को अगर छोड़ना पड़ा तो प्रिंसिपल और मेरा 36 का आंकड़ा हो जाएगा, कि इस प्रिंसिपल सर को लगेगा कि दिस मैडम शी हैज अपोज्ड मी, शी इज नॉट फॉलोइंग माय इंस्ट्रक्शंस, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग द कॉलेज वर्क. सो आफ्टर दैट आई विल हैव टू फेस लॉट मेनी प्रॉब्लम्स. And that is why many a times we are angry at some people, but we cannot express our anger. At that time we have to swallow the anger. लेकिन आपको वो गुस्सा हमेशा के लिए पीकर नहीं रखना है, तो आपको क्या करना है, let me tell you. See here, this is the today's scenario. You, me, as being students, you also have lot many stress. जैसे अभी आपको स्ट्रेस आ रहा होगा, यार मुझे ये सब चीज जमेगी क्या कॉलेज की, कई बार तो सेशंस मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं, एंड सम सेशंस दे आर वेरी बोरिंग, बट स्टूडेंट्स यू हैव टू एक्सेप्ट इट. This is the framework in which you have to go. You have to accept what your teachers are telling you. कई बार ऐसा होता है कि suppose you have 7 subjects for your BE, out of 7 definitely 2 subjects are such
that they are boring subjects, you don't like to attend those subjects, or a few teachers you do not like to attend the sessions of those teachers. But you don't expect that your all subjects will be 100% interesting subjects, your all teachers will be 100% perfect teachers. It's not possible at all. You take admission in any of the top colleges of the world, किसी भी टॉप कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए, बट वहां पर भी डेफिनेटली one or two subjects will be boring, one or two teachers will not be of your favorite teachers. ऐसा होगा ही होगा, because in life 100% things cannot be according to the way you want. आपको 56 भोग परोसा गया है, पर 56 भोग होने के बावजूद भी there are one or two dishes which you do not like, you do not want to eat them, but as it has been served in your dish, you have to test each and every dish, you have to complete your food. अगर आपने फूड को झूठा छोड़ दिया, मतलब आपने अपने एजुकेशन का वो पार्ट पढ़ा ही नहीं, आपने अपने जॉब का वो काम किया ही नहीं, एंड इफ एनीथिंग इज अनफिनिश्ड, हाउ कैन यू गेट द सक्सेस? इसलिए अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक जितने 56 सब्जेक्ट्स परोसे जाएंगे, taught by 50 different teachers, you have to accept each and every subject, each and every teacher with complete positivity. And क्योंकि और आपको ये करते समय you will undergo through lot many stress. आपको पढ़ाई का टेंशन, once your college will regularly start, let me tell you students, every day you have to attend the college from 10 to 5. Every day teachers will give you assignment, every day each teacher will give you a lot of homework, every day each practical teacher will give a lot of writing work which you need to complete in your journals. And then when you will be completing all these things, suddenly your teacher will declare that from next Monday it will be your examination, unit test 1, unit test 2, and so on and so that, and then you will be stressed. बाप रे, अभी तो मेरा ये सब्जेक्ट बाकी है, वो बचा है, उसका लिखना बचा है, वो कंप्लीट करना बचा है, इसका असाइनमेंट बचा है, एंड सडनली देयर इज टेस्ट, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, सो यू विल बी स्ट्रेस्ड. और फिर जब आप ये पढ़ाई का स्ट्रेस संभालोगे, अचानक नेक्स्ट डे अगेन अ नोटिस विल कम इन योर क्लासरूम, यस यू हैव टू पे द रिमेनिंग फीस. और आप रिमेनिंग फीस के लिए अपने पेरेंट्स को फोन कर रहे हैं कि पापा मैडम ने बोला है कि फीस पे करो. फ्रॉम देयर योर पेरेंट्स विल से नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अरेंज द मनी. तो आपको वो एक अलग टेंशन. तीसरा, आपके कभी कभी आप बीमार हो सकते हैं. फोर्थ, कभी एक कोविड का प्रॉब्लम आ सकता है. फिफ्थ, कभी आपको खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, कभी आपके दोस्त अच्छे नहीं मिल रहे हैं, कभी आपका सेटिंग अच्छा नहीं है. So we people continuously, all these kinds of stress, it is there in everybody's life. As a student, you will be facing these kinds of stress. As an employee, we have different kinds of stress. Sometimes we have stress of our job work, हमारे colleagues का stress होता है, junior, senior, and you know everywhere there is politics at workplace, that is a different pressure. Then there is a familial pressure, marital problems are there, family problems are there. कभी husband wife की नहीं बन रही है, कभी बच्चों के साथ कुछ अनबन हो रही है, कभी मकान मालिक एकदम सिर पर आकर खड़ा हो गया. So our life, it is surrounded from all sides by a number of stress, number of problems. And just now I was telling you about anger. क्या होता है, हमारी जिंदगी में बहुत बार हमको गुस्सा आता है, बट वी डू नॉट एक्सप्रेस अवर एंगर. एंड फ्रॉम चाइल्डहुड till your this age, I think all of you must be of either 17 or 18 years of age. तो बचपन से लेके 17-18 साल तक, all of us, you, me, everybody in the life, we all have been suppressing our emotions. हम सब ने हमारे emotions को suppress करके रखा है.
कैसे? अभी मैंने आपको गुस्से की बात बताई. Many a times we feel to become angry, to shout at somebody. अरे मोदी जी के ऊपर कभी हमको गुस्सा आ जाता है and we feel to shout at him. We feel to shout at धोनी and विराट कोहली कि अगर मैं वहां रहता ना, विराट को 2 देख के ही रखता कि क्या खेल रहा है, क्या पागलपन जैसा खेल रहा है. We feel angry, but we want to shout also, but we cannot. हम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि अगर शाउट किया इमीडिएटली वी विल बी बिहाइंड द बार्स, वी विल बी पुट इन द जेल. अगर हम डायरेक्टली ग्राउंड पे गए और मान लीजिए सचमुच में अपन ने ऐसा कुछ कर लिया, कोहली के ऊपर एक आधी बॉटल फेंक के मार दी, वी विल बी, पुलिस विल इमीडिएटली कम, दे विल टेक अस एंड दे विल पुट अस बिहाइंड द बार्स. हम ऐसा नहीं कर सकते. कई बार हमको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो इट मीन्स दैट वी हैव टू सप्रेस अवर एंगर. सप्रेस करना मतलब अपने इमोशंस को दबा देना. गुस्से को आपने दबा दिया. Many a times, even during your childhood, you must have observed that you wanted to cry. आपको रोना था. क्यों रोना था? Because you wanted to have one toy and your parents were not giving you that toy. और आपको गुस्सा आया, आपको रोना था. और बचपन में आपको पता है बच्चे रोना शुरू कर देते. बट समटाइम्स योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू एंड दे से रडला तर पाहता, रोया तो अब देखने ना, और 2 पड़ेंगी. एंड देन व्हाट हैपेंस? यू हैव टू सप्रेस योर क्राइंग. आपको अपना रोना भी आपको कई बार दबाना पड़ा. हो सकता है अभी एडमिशन के समय कई बार आपको एडमिशन लेते वक्त, मैं आई वाज माई सेल्फ इन एडमिशन कमिटी. मैंने भी मेरे कॉलेज के प्रियदर्शनी कॉलेज के एडमिशन कमिटी में थी. एंड आई हैव लिटरली सीन parents and children quarreling while taking admission, or particularly girls. I have seen them crying in the campus. और फिर हम पूछते थे, फिर हम बोलते थे, पर कई बार वो हमारे से बात भी नहीं करते थे. नहीं मैडम, वो हमारा प्रॉब्लम है. एंड देन दे यूज्ड टू गो आउटसाइड, थोड़ा दूर जाके रोते थे. तो कई बार हो सकता है आपको अपना रोना दबाना पड़ा हो जिंदगी में. कई बार हमको हमारी हंसी भी दबानी पड़ती है. हाउ डू वी सप्रेस अवर लाफ्टर? हो सकता है आपके घर में आपके कोई अंकल आए, चाचा मामा कोई आए, और उन्होंने अजीब सी पोशाक पहनी या वो अजीब सी बातें कर रहे हैं, एंड देन यू वांटेड टू लाफ एट हिम. अरे कैसे बात कर रहे, कैसे कपड़े पहने, किस ढंग से वो लोग वो खा रहे हैं, अरे रे. एंड यू वांटेड टू लाफ एट देम. बट आपके पापा ने बोल दिया, असं हसायचं का त्यांच्या समोर? बिल्कुल हसायचं नाही. कभी कभी आपको क्लास के अंदर, पक्का आपके स्कूल डेज में, you must wanted to laugh at your teacher, क्योंकि टीचर ने कुछ अजीब सी हरकत कर दी या टीचर ने कुछ अजीब सा बोल दिया और आपको टीचर के ऊपर हंसी आ गई. और स्कूल में तो होता है ना, when you are together with your friends, many a times you make fun of your teachers, but then suddenly your teacher stares at you and she says, keep quiet, and then you have to suppress your laughter. तो कभी हम हमारा गुस्सा दबा रहे हैं, कभी हमारा रोना दबा रहे हैं, कभी हमारी हंसी दबा रही है. एंड इन दिस वे, सिंस अवर चाइल्डहुड, वी हैव बीन सप्रेसिंग अवर इमोशंस. और क्या होता है जब हम हमारे इमोशंस को सप्रेस करते हैं? सी, रीड द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस स्लाइड. व्हाट द माइंड रिप्रेसेस, द बॉडी एक्सप्रेसेस लेटर एज डिसीज. So whenever we keep on repressing and suppressing our emotions, what happens? After some times, maybe after 30 years, हो सकता है अभी तो नहीं, लेकिन 25 साल बाद, 30 साल बाद, कभी कभी 35-40 साल बाद, कंटिन्यूसली हम हमारे इमोशंस को सप्रेस करते आ रहे हैं. कभी प्यार के इमोशंस को, you love somebody but you are unable to express your love. और कभी कभी हम तो इवन प्यार को सप्रेस करते हैं. सो समटाइम्स एंगर, समटाइम्स क्राइंग, समटाइम्स लाफ्टर, समटाइम्स लव. वी कीप ऑन सप्रेसिंग अवर इमोशंस. कभी कभी हमारी कुछ करने की चाहत होती है, हमको लगता है कि जोर जोर से डांस करूं, बट देन योर फैमिली मेंबर्स डोंट अलाउ यू, या जहां पर आप हैं वहां पर आप कर नहीं सकते डांस. तो आपने अपना डांसिंग की विश को भी क्या किया? दबा दिया. एंड व्हेन यू कीप ऑन कंटिन्यूअसली सप्रेसिंग योर
all these kinds of emotions, what happen, वो body के अंदर हमारे वो suppress होते जाते हैं, and one day your entire body gets filled with these suppressed emotions. पूरी body हमारी suppressed emotions से भर जाती है, और फिर भी आप अपने इमोशंस को दबाते जा रहे, फिर एक दिन क्या होता है आपको पता है ना, अगर कोई कंटेनर लिया आपने, and if you are adding something in that container, gradually the container will fill up to the brim, पूरा ब्रीम तक वो कंटेनर भर जाएगा, and still if you will keep on adding material in it, what will happen, the container will get overflowed and things will start falling from it. Similarly, it happens with our body. If you will continuously keep on suppressing your mind, a stage will reach when your body will be completely filled up with those suppressed emotions. And if you will still keep on suppressing the emotion, a day will come when your body will explode. Explosion of body means nothing but diseases. और ये जो बॉडी से जो एक्सप्लोजन हुआ, वो एक्सप्लोजन कैसे होगा, दैट एक्सप्लोजन विल बी इन द फॉर्म ऑफ थायराइड, दैट एक्सप्लोजन विल बी इन द फॉर्म ऑफ बीपी, इन द फॉर्म ऑफ कैंसर, इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज, एंड इन द फॉर्म ऑफ n number of different diseases. And that's why you must have observed that people after 30, 35 or maximum 40 years of age, nowadays people after 40 years of age, they suffer because of one or the other diseases. और आपको पता है even scientists, doctors, psychologists, they accept whatever I am saying. Even these people accept that yes, if you keep on suppressing your emotions since childhood, then a stage is reached, maybe 35 years, maybe sometimes even 30 years or 40 years, that your body is completely filled with suppressed emotions, and then there will be a huge explosion, and then your body will take out those suppressed emotions in the form of diseases. ये देखो यहाँ पे मैंने सब वही बताया है डिसीजेस के रूप में. See here, the energy of discharged emotions gets suppressed or repressed in our conscious mind, which acts like a garbage can. अब आपकी बॉडी क्या होगी, एक गार्बेज कैन की तरह होगी. When the garbage can becomes full, the repressed emotions overflow. तो आपने जो अपने इमोशंस को दबा के रखा था ना, वो अब क्या होगा, ओवरफ्लो होगा. एंड दिस क्रिएट्स टेंशन, स्ट्रेस, टेंशन. इट इज एक्चुअली अ स्ट्रगल बिटवीन योर रिप्रेस्ड इमोशंस एंड दे वांटेड टू कम आउट. वो चीज निकलने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि आपने अपने बॉडी को ओवर उसको भर दिया है, अब वो ओवरफ्लो होने जा रही है, एंड दिस क्रिएट्स टेंशन. तो अब आपको करना क्या है, see here, I will skip this. You have to now take out your suppressed emotion, so you have to do meditation. अब आपको मेडिटेशन के थ्रू यू हैव टू टेक आउट योर सप्रेस्ड इमोशन. अगर आपने अपने सप्रेस्ड इमोशंस को नहीं निकाला, when there is a right time, through right method, if you do not take out your suppressed emotion, a day will come that your body will be completely filled with these suppressed emotions, and then even you people will also start suffering with one or the other disease. And therefore you must practice meditation. अब आपको लगेगा मैडम मेडिटेशन में आप बोलेंगे यू जस्ट सिट इन सुखासन और पद्मासन एंड जस्ट क्लोज योर आईज. नो, that is not true meditation. I will explain you. There are two steps of meditation: active meditation and passive meditation. Now, what you have to do in active meditation, you have to do catharsis process. शायद ये टर्मिनोलॉजी इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी फॉर यू, कैथारसिस. अब कैथारसिस में क्या है, it see here the definition of catharsis. It is a process of expressing and getting rid of your accumulated stress. जो आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ा है, रिप्रेस्ड फीलिंग्स एंड इमोशंस फ्रॉम द बॉडी एंड द माइंड. तो आपके अंदर क्या भरा है, रोना भरा है,
कौन सा रोना भरा है? जब आपको एक टॉय चाहिए था, आपने जिद्दी की थी, योर पेरेंट्स वेर नॉट फुलफिलिंग योर डिमांड्स और आप पसर गए थे, आपने रोना धोना शुरू किया था, बट आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा था, रडलं तर अजून एक पाठीत देणार आहे, रोया तो और जोर के खींच के दूंगी, चुपचाप बिल्कुल बंद होना चाहिए रोना। वो रोना अब आपको निकालना है। तो मैडम अब कैसे निकालेंगे हम रोना? वो तो अब तो हमको वो रोना भी नहीं आ रहा, अब तो मुझे वो खिलौना भी नहीं चाहिए। नहीं, बट इन योर माइंड, इन योर बॉडी, इन योर अनकॉन्शियस माइंड, दैट crying for that toy is still there. That laughter at your uncle's nonsensical talk, it is still there. That anger against Virat Kohli for not hitting sixes and losing the match, that is still there. That loving of your neighbor, maybe you wanted to love or you wanted to flirt with a neighbor, a girl or a boy, that love is still there with you in your mind, in your subconscious mind, that you need to vacate. आपको वो निकालना है और उसके लिए आपको करना है कैथारसिस. So what you have to do in catharsis? In catharsis, you have to dance. आपको अपने आप को, you have to close yourself in a room. अपने आप को एक रूम में बंद कर लो जहां पे आपको कोई ना देखे और you start dancing and dance like a mad person. You have not to follow exact steps. You play any number, any song, एनी डांस नंबर, कोई भी गाना आप लगाओ, कोई भी जो आपको पसंद है जिस पे आप डांस कर सकते, चाहे झिंगाट लगाओ, चाहे आज ब्लू है, पानी पानी पानी, कोई भी गाना लगाओ विथ फास्ट म्यूजिक, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग यू स्टार्ट डांसिंग and dance like a mad person. And when you will start dancing in this way, automatically your suppressed emotions will start coming out. वो अपने आप निकलते हैं, you will not even realize that they are coming out, but they will come out. और आपको ऐसा रोज करना है, या रोज नहीं भी, so at least once or twice in a week you do it. Just do it for 10 to 15 minutes. 10 से 15 मिनट तक you have to continuously dance, continuously jump up. उस डांस के बीच बीच में कूदना है. कूदने से क्या होगा? योर ऑक्सीजन लेवल विल इंक्रीज, ब्लड सर्कुलेशन विल इंक्रीज एंड यू विल स्टार्ट टेकिंग मोर एंड मोर ऑक्सीजन. आपको पता है ना, आप डांस करते करते थक जाते हो, एंड देन हाउ डू यू ब्रीथ? Why this? Because you are tired now. You require more oxygen. तो जो आपने suppressed feelings आपके बॉडी के अंदर दबा के रखा था, those suppressed feelings have blocked some of your cells. आपको पता है ये suppressed feelings हमारे बॉडी के अंदर, all of you know this much of biology, that there are lakhs of cells, micro cells in our body, and majority of these cells they become blocked because of suppressed emotion. वो block हो जाते हैं, and because of that oxygen does not reach to each and every cell of our body. और ऑक्सीजन हर सेल पे के तरफ नहीं जाता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाता, इसी कारण दैट पार्ट ऑफ द बॉडी जहां के सेल्स अपन ने ब्लॉक कर दिए, और ब्लॉक क्यों हुआ? because of suppressed emotions. Because of suppressed emotion, certain cells of our body they becomes blocked, and because they become blocked, the oxygen and blood circulation do not reach to those cells and to that part of the body, and then that part of the body becomes weak, and then that part becomes infected, and we call it as disease. तो अब आपको क्या करना है? यू हैव टू डांस. डांस करने से क्या होगा? आपको बहुत थकान आएंगे, एंड यू विल स्टार्ट ब्रीदिंग फास्ट, and because of fast breathing your blood circulation will become faster. You will start oxygen level will reach to your each and every cell. जो ब्लॉक हो चुके थे, अभी वो सेल क्या होंगे? slowly it will get opened.
और वहां तक ऑक्सीजन जाएगा एंड इवन ब्लड सर्कुलेशन विल ऑल्सो रीच to each and every cell of your body, and your cells, they will start opening, and as they will open, every cell will feel as if it is getting oxygen and blood level, and then you will feel fresh. So what you have to do, you have to, for 10 to 15 minutes, you have to continuously dance, and during dance you jump in between, बीच बीच में jumping करो, so that you will get better blood circulation. ये चीज मैंने यहाँ पे बताई है. एंड देन वंस यू डू दिस कैथारसिस प्रोसेस, इसको अगर कोई देखेगा तो बोलेगा क्या पागल के जैसे डांस कर रहा, क्या बंदर के जैसे उड़िया मार रहा. यस, लेट द पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग यू थ्रू विंडो, लेट हिम ऑब्जर्व, लेट हिम से दैट यस यू आर मैड, पर आपको वो मैडनेस करना है. और वो मैडनेस से क्या होगा, यू विल टेक आउट योर एंगर, you will take out your laughter, you will take out your crying, you will take out your love. जो आपने दबा के रखा था, it will come out automatically. You may not realize it, but it happens. Okay? And then once you take out your all suppressed emotions out of your body, now you will feel little bit lighter. क्योंकि आपने तो अपनी बॉडी को पूरा भर के रखा था ना सप्रेस्ड इमोशन से. नाउ आफ्टर डांसिंग, आफ्टर जंपिंग फॉर 10 to 15 मिनट्स, नाउ यू विल बिकम लाइटर. अब आपकी बॉडी थोड़ा आपको लाइट, यू विल फील लाइटर, एकदम हल्का महसूस करेंगे. एंड देन अब आपको करना है पैसिव मेडिटेशन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन. जरूरी नहीं कि आप पद्मासन में बैठो, जरूरी नहीं आप सुखासन में बैठो. इन वॉट एवर कंफर्टेबल पोजीशन यू कैन sit in a comfortable position and play some soft music, maybe music of flute, music of shehnai, music of some instrument, with soft music, without, और वो instrumental music होना चाहिए. इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ओनली, देयर विल बी नो वर्ड्स इन इट, बोल नहीं होंगे उस गाने के, ओनली म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक, प्रिफरेबली ऑफ फ्लूट, प्रिफरेबली ऑफ शहनाई और सितार. ओके, एंड देन यू क्लोज योर आईज, कीप योर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, एंड देन जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग. क्योंकि आप बहुत थक गए ना डांस करके और जंपिंग करके, सो यू विल ब्रीथ वेरी फास्ट. सो व्हेन यू विल सिट साइलेंटली, then you just observe your breathing. अब आप बोलेंगे मैडम ये सब हमको पता है, बट ब्रीदिंग के समय भी लॉट मेनी थॉट्स विल कम इन आवर माइंड. लेट द थॉट्स कम, आने दो, विचार आएंगे. लेट द थॉट्स कम इन योर माइंड. हो सकता है उस समय आपको ये भी याद आया, अरे मेरे को तो वो असाइनमेंट सबमिट करनी थी फिजिक्स की, oh my god, that maths madam, she has given me homework. Okay, you may remember all these things, don't worry. Let all these thoughts come in your mind, and after 10 minutes of complete silent sitting, you will feel completely relaxed. And now you will feel as if there is no burden, and then slowly you need to open your eyes. We are going to practice this meditation today. अभी मैं मेरे सेशन के बाद 5 मिनट के लिए, just for 5 minutes, we are going to do this activity. Okay, and when once you learn this art, एक बार आपको इस चीज की प्रैक्टिस हो गई ना, you do it at least twice in a week. हफ्ते में 2 बार आप एक कीजिए. whenever you need only half an hour time. Out of half an hour, 10 to 15 minutes for dancing and jumping, and 10 to 15 minutes for silent sitting. That's all. So just take out half an hour once or twice in a week and do this kind of active meditation first. Active में आपको क्या करना है, dancing and jumping, and then passive meditation. And what you have to do in passive meditation, just sit silently. And for both the active and passive meditation, use music. तो आपके मोबाइल में तो बहुत सारे गाने रहते हैं, कोई भी एक गाना बजाओ. फॉर एक्टिव मेडिटेशन, इन एक्टिव मेडिटेशन योर म्यूजिक शुड बी फास्ट on which you can dance, and for passive meditation it should be lighter music, instrumental music. And then once you do it for maybe 6 months, 7 months, or maybe 1 year,
उसके बाद तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज वंस योर बॉडी इज वैकेटेड ऑफ ऑल द सप्रेस्ड इमोशन जो दबा के रखा था, हर मेडिटेशन सेशन में आपके धीरे 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 योर ऑल सप्रेस्ड इमोशंस will come out of your body, and now your body will be completely vacated. It will be completely empty from all these kinds of nonsensical suppressed emotions, and then your all body cells, it will get completely opened, and you will always feel fresh, लाइट, स्ट्रेस फ्री। उसके बाद आपके टीचर ने आपको 10 भी असाइनमेंट दी ना, आपको कोई टेंशन नहीं आएगा, ओ 10 assignments, no worry, I will complete it. A teacher has given me this much of work to do, no, don't worry, I will do it. Without any tension, without any stress, you will complete your work with complete dedication. ओके और उसके बाद एक बार आपको ये कला आ गई ना, उसके बाद तो आपको यू हैव नॉट टू डू मेडिटेशन एट ऑल। उसके बाद तो ना डांसिंग करनी है, ना जंपिंग करनी है, ना आराम से बैठ के म्यूजिक सुनना है, कुछ नहीं। योर वर्क इटसेल्फ विल बिकम मेडिटेशन। Even if you are driving, even if you are riding your bike, it will be a meditation. Even if you are taking your food, it will become your meditation. Even if you are cleaning the floor, आप पोछा लगा रहे, you are cooking the food, it will become meditation. आपको वो करने की भी जरूरत नहीं, because now that meditation has entered your body, that art has entered your body, and now once you learn this art, then your each and every work will become meditation. आपका हर काम meditation ही रहेगा, okay? So meditation transform us from illness to wellness. इलनेस मतलब डिसीज, तो मेडिटेशन आपको क्या करेगा, डिसीज से पीस की तरफ ले जाएगा। दिस इज PISEASE, which is disease, it will take you to peace, PASE. One student who is disturbing me, yeah. अब देखो, what is the difference before meditation and after meditation? Before meditation, work is tension, burden, and duty. If work is a burden, then it looks like work. But if work comes out of love, out of peace, out of inner silence, then it becomes worship. सो बिफोर मेडिटेशन जो चीज आपको एक बर्डन लगती है, एक टेंशन लगता है, वही चीज मेडिटेशन के बाद विल बिकम काइंड ऑफ लव फॉर यू। यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर ईच एंड एवरी वर्क। अभी क्या होता है, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ काम बता दिया, कभी कभी मम्मी बोल देती है बेटा थोड़ा सा ये 2 रोटी बना ले, या ये साफ सफाई कर दे, या लड़कों को बोलते बेटा बाजार से सामान ले आ जाते, यू बिकम एंग्री, मेरा कॉलेज है, मेरे को इतने काम है, और आप बीच बीच में, you will not become angry even if your parents give you some work, even if your teachers give you too much of work. आप जो पहले हम लोग बोलते ना, टीचर को क्या है, दे दिया असाइनमेंट, उनको क्या है, उनको थोड़ी ना करना पड़ता, असाइनमेंट है, दे दिया इतना असाइनमेंट, उनको इतना नहीं समझता क्या कितना टाइम लगेगा, टाइम है क्या हमारे पास। we are so grudging, always keep on complaining against teachers, but वही चीज आफ्टर मेडिटेशन you will start enjoying. नहीं, ये मेरे भले के लिए, कोई बात नहीं, फटाफट तो हो जाता, इतना छोटा सा तो असाइनमेंट, आई विल डू इट। एंड देन ट्रीट योर वर्क प्लेस एज योर, ये चीज मैं आपको बताऊंगी कि यू शुड ऑलवेज ट्रीट योर वर्क प्लेस एज योर टेम्पल। जहां पे भी आप काम कर रहे हो, कॉलेज में हो तो कॉलेज को टेम्पल मानिए, घर में हो तो घर को टेम्पल मानिए। when you will grow up and you will work, आप किसी कंपनी में काम करोगे तो वहां पे भी उसको टेम्पल मानिए, मंदिर मानिए। क्यों मंदिर मानना है हमको? बिकॉज जब आप किसी मंदिर में जाते हो स्टूडेंट्स, सो टेल मी, डू यू वेरी माइन्यूटली ऑब्जर्व द आइडल ऑफ एनी गॉड? भगवान की जो मूर्ति होती है, आप उसको बहुत ध्यान से देखते हो क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा। आई जस्ट गो टू द टेम्पल, आई जस्ट गो बिफोर द गॉड, बस भगवान के सामने से नमन कर लिया और आ गए। Do you observe very carefully that God? Tell me yes or no. Any one student you can answer. Do you observe God very minutely? Yes or no? Yes. क्या ऑब्जर्व करते हो बेटा? भगवान की आंखें देखते हो, उनका रूप रंग देखते हो, क्या देखते हो बेटा आप?
बताओ। विक Yes, ma'am, all that. नो, दैट यू आर लाइंग Sir, बेटा, art, हम ma'am. कभी नहीं देखते हैं, Yes, नहीं ma'am. देखते हैं। Yes, ma'am, I do. 99% people we do not observe various parts of that god. हम उस गॉड के अलग अलग पार्ट्स नहीं देखते हैं, वी जस्ट गो, हम भगवान को एक भगवान के पूरे मूर्त की तरफ एक नजर डालते हैं, वी क्लोज अवर आईज, क्योंकि जो भगवान की असली में पूजा करता है वो तो आंख बंद करके करता है ना। सो हाउ कैन यू सी गॉड एंड इट्स वेरियस पार्ट्स, कैसा सजाया है। हाँ, कभी कभी हमारे बहुत अच्छे से भगवान को सजाया गया है तो हम देखते हैं अरे वाह कितना अच्छा फूल चढ़ाया हुआ, अरे वाह कितना अच्छा प्रसाद है, कितनी अच्छी सजावट की है, दैट्स ऑल। तो आप, मेरा कहने का मतलब है जब आप किसी आपके कॉलेज को, यू कंसीडर योर कॉलेज एज योर टेम्पल, एंड देन वहां पे जो बुराइयां है, जैसे भगवान के मंदिर में भी बहुत सारी चीजें गलत होती है, कभी कभी भगवान का चेहरा अच्छा नहीं बना होता है। अगर आप किसी मूर्तिकार को पूछो कि ये मूर्ति कैसी है तो बोलेंगे अरे ये तो बैलेंस मूर्ति नहीं है, इसका शेप गलत है, इसका नाक ऊंचा है, इसके एक गाल बड़ा हो गया एक गाल छोटा हो गया, ये बैलेंस मूर्ति नहीं है, इसका कलर भी अच्छा नहीं है। लेकिन हम ऐसा कुरकुर नहीं करते जब मंदिर में जाते हैं। आप ऐसा नहीं बोलते नहीं नहीं ये मेरे घर के बाजू वाला हनुमान जी है ना, नहीं नहीं इनका हनुमान का शेप ही अच्छा नहीं, इसलिए मैं ये मंदिर में नहीं जाता। वो मंदिर के राम है ना, नहीं 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 उनकी हाइट ही अच्छी नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं सोचते, बस हम मंदिर में जाते हैं एंड वी नेवर क्रिटिसाइज गॉड, वी नेवर क्रिटिसाइज गॉड, हम गॉड को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते। हम ये नहीं बोलते अरे यार ये मंदिर तो छोटा ही है, ये मंदिर गंदा है, ये मंदिर की दीवार खराब है, हम कभी ऐसा नहीं बोलते। तो मेरा भी आप सबसे ये, आई अर्ज ऑल ऑफ यू, आई अपील टू ऑल स्टूडेंट्स, डू नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग ऑफ योर इंस्टीट्यूट। कभी भी कंप्लेन मत करना कि नहीं यार मेरे कॉलेज का या मेरे क्लासरूम का ये सिटिंग ही अच्छा नहीं है, ये बोर्ड ही अच्छा नहीं है, ये टीचर ही अच्छी नहीं है, ये कॉलेज का यही अच्छा नहीं। नो, डू नॉट क्रिटिसाइज एनीथिंग, कंसीडर योर इंस्टीट्यूट एज योर टेम्पल। बस मुझे जाना है कैसे भी भगवान रहे, कैसे भी उनका पहनावा रहे, कैसे भी उसकी सजावट रहे, कैसे भी उसकी दीवार रहे, कैसे भी उसका रंग हो, मुझे बस अपना उसमें अर्पित करना है अपने आप को, एंड देन दैट्स ऑल। ओके, नाउ इफ यू डू दिस आवर एंटायर लाइफ विल बी जस्ट लाइक दिस पीकॉक, और हम जिंदगी में बिल्कुल ऐसे ही पूरा मदमस्त होकर अपना सब कुछ अपना ओपन करके वी कैन इवन डांस इन लाइफ। एक्चुअली दिस dance of peacock is a symbol of your success, of your happy life. You know when does a peacock dance? Only when he is happy. peacock कब डांस करता है? when it is very very happy. जब वो हैप्पी होता है तभी डांस करता है। तो आप भी इस तरीके से डांस करोगे when you will be happy and successful in your life. Students, all I request all the students to keep yourself muted. मैडम आप सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। आवेदन कागज पत्र वो पासबुक। All the students, now you rub your palms against each other like this, and then gently place your palms on your ears, on your eyes, and then slowly open your eyes. I hope those who have done it seriously, मुझे पता है 50% स्टूडेंट्स ने तो जैसे म्यूजिक ऑन हुआ होगा, यू मस्ट नॉट हैव इवन हर्ड इट और यू मस्ट नॉट हैव सेट प्रॉपरली और सुना भी नहीं होगा, बट कुछ स्टूडेंट्स ने पक्का आराम से बैठे होंगे, आईज बंद की होगी, एंड देन यू मस्ट हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस म्यूजिक। Okay, so anybody, any student, can you give me your feedback? How did you feel after listening to this just 2 minutes time, 2 minutes music? Tejas Dalwani, you have commented that you have done it properly. So Tejas, tell me, how was your feeling? How did you feel after listening this? सिर्फ 2 ही मिनट मैंने सुना है म्यूजिक. How did you feel?
तेजस, सी सबने लिखा है रिलैक्स्ड, I felt refreshed. very refreshed. Is it is it an honest feedback, Tejas? Yes, ma'am. Ma'am, I हाँ, used to कैसा do लगा? it back. यस मैम, माइंड फ्रेश हो गया। अच्छा माइंड लगा आपको? तो अगर आप इसको इसके पहले अगर एक्टिव मेडिटेशन भी करोगे ना, तब तो इसका 10 टाइम्स यू विल फील रिफ्रेश्ड। मैंने तो आज आपको एक्टिव मेडिटेशन करवाया नहीं, तो टेल मी आदित्य, हाउ एक्टिव मेडिटेशन इज डन? क्या करना होता है एक्टिव मेडिटेशन में? क्या बताया मैंने? व्हाट यू हैव टू डू? आदित्य बरघट, टेल मी व्हाट यू हैव टू डू इन एक्टिव मेडिटेशन। Ma'am, dance. डांस करना है, या और बीच बीच में जंपिंग भी करना है। फाइन, जोर जोर से डांस करना है, जंपिंग करना है, हाथ पांव को हिलाना है। योर एंटायर बॉडी मूवमेंट शुड बी देयर, ठीक है, सो दैट योर ऑल सेल्स विल गेट ओपन। और सबसे इसका फायदा है, योर सप्रेस्ड फीलिंग्स गो आउट। और उसके बाद आपको एक बार ये सब चीजें हो गई ना, फिर आपके बॉस ने आपको डांटा, आपको कोई असर नहीं गिरी, आपको बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा अरे मेरे बॉस का डांटना ये तो उसका काम है, मेरा काम क्या है? उसको सुनना, उसके गुस्से को पी लेना, और बाद में तो मैं मेडिटेशन में से उसको निकाल ही दूंगा। ओके, सो यू प्रैक्टिस दिस जितना कर सकते। आई एम अपीलिंग यू जस्ट ट्वाइस इन अ वीक, once or twice करोगे तो इट विल बी बेटर, बट एटलीस्ट जितना पॉसिबल हो। रोज करो तो उससे तो अच्छा कोई बात ही नहीं, बट डू इट एटलीस्ट बिफोर गोइंग टू बेड इन द नाइट। सोने के पहले ऑल्सो यू कैन डू इट, और अर्ली मॉर्निंग ऑल्सो यू कैन डू इट, एंड यू कैन डू इट इन ग्रुप ऑल्सो। अगर आपको लगता है 5-6 लोग मिलकर, कॉलेज में भी अगर पॉसिबल है, यू कैन रिक्वेस्ट योर टीचर, अगर ऐसा कोई क्लास रख सकते हो मेडिटेशन का, तो तब भी आप कर सकते हो। नाउ इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस टॉपिक, इफ यू वांट टू आस्क, द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू। यस, किसी को कुछ पूछना है, कुछ मन में डाउट है, सवाल है, तो यू कैन आस्क मी। मैम, हाँ मैम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्फा लेवल मेडिटेशन एंड नॉर्मल मेडिटेशन? अल्फा लेवल मेडिटेशन, सी दीज आर द ऑल इन डेप्थ। आपने बहुत इन डेप्थ ये चीजें पूछी है मुझे, ये बहुत आगे की प्रोसीजर है बेटा, विच ओनली सेंस महात्माज और जो बहुत उसमें डीप रूटेड रहते हैं, वो लोग ही उसमें जा पाते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू रीच टू अल्फा लेवल मेडिटेशन। वे उसके अलग अलग चक्र होते हैं, तो वो एक चक्र होता है अल्फा मेडिटेशन का। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हमको उतने डिटेल में जाना नहीं है, बिकॉज वी हैव टू हैंडल लॉट मेनी थिंग्स। वो तो जो लोग पूरी तरीके से उसी में डूबे रहते हैं, दैट इज फॉर देम। ओके, बट स्टिल सी इट्स नॉट लाइक मेडिटेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैडम मोह माया छोड़ देंगे, जब हम हिमालय पे जाएंगे तब करेंगे। नो, ऑन द अदर एंड आई विल से, जितना आप अपने रूटीन लाइफ में रह रहे हो, यू डू योर ऑल वर्क। आप जो अपना रूटीन का काम है सब करो, एंजॉय करो, खाना खाओ, पढ़ाई करो, किसी के ऊपर हंसना है हंसो, इफ यू वांट टू अब्यूज समबडी, जो भी आपको करना है करो, अपना रूटीन काम करते हुए डू मेडिटेशन। तो आपके सारे रूटीन काम, दे विल बिकम डिसिप्लिन्ड वर्क, एंड यू विल गेट सक्सेस इन ईच एंड एवरी वर्क। ओके, सक्सेस मतलब पैसों से सक्सेस नहीं, आपको एक हैप्पीनेस तो जरूर आएगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ओके, यस, एनीबडी एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? If no more questions are there, I think we should end the session. Yes, madam. If no more questions are there, then I declare that my session is over. Okay, madam. Yeah. Okay. So मैडम, बच्चों की तरफ से तो नहीं, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन है। हाँ, मेडिटेशन सोचते तो बहुत है, करना है करना है करना है, हो ही नहीं पाता, ये नहीं, कैसे मैं शुरू किया जाए?
हाँ, ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन मैम, कि हम बहुत बार सोचते हैं नहीं कल से तो मैं करूंगा, पर नहीं करते हैं। तो मैडम इसके सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको ग्रुप में कीजिए। अकेले थोड़ा सा हम लोग अवॉइड कर देते हैं। जैसे सबको पता है योगा के फायदे, सबको पता है, पर हम कहाँ करते हैं योगा, बहुत कम लोग करते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं मैडम, इसको ग्रुप में शुरू कीजिए, पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ कर सकते हैं, या नहीं तो कॉलेज में सब कलीग्स और स्टूडेंट्स के साथ करो। मैंने हमारे प्रियदर्शनी में आई हैव स्टार्टेड इट। अब 2 साल से कोरोना था तो स्टूडेंट्स नहीं थे, बट बिफोर दैट वी यूज्ड टू डू इट। हम लोग करते थे ये लोग, बिल्कुल हमारे कॉलेज में महीने में 1 दिन हमने टाइम टेबल में क्लास ही रखा था। सो इवन यू कैन स्टार्ट लाइक दैट आल्सो मैडम, या फिर इंडिविजुअली घर पे 2-3 आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को बोलो कि ऐसा हम शुरू कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो इसका ग्रुप इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, जो आप जब मेडिटेशन करते हो एक्टिव और पैसिव, तो एनर्जी का फ्लो होता है। तो सब लोग अगर 4-5 लोग मिलके करोगे तो वो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है, और वो मल्टीप्लाइड एनर्जी इज मोर बेनिफिशियल देन इंडिविजुअल। तो ग्रुप भी बोलते हैं, तो ग्रुप मेडिटेशन तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो लेकिन वही है कि आपको वो मतलब एक तो फर्म डिटर्मिनेशन करना है कि नहीं मुझे करना ही है, एंड यू स्टार्ट इट। ओके, मतलब इसका कोई ऐसा फिक्स समय नहीं है, जब भी हम कर सकते हैं, दोपहर में, शाम को, रात को? कभी भी करो। हाँ, कभी भी करो मैम, रात को करो सोने के पहले, दिन में कर सकते हैं, या whenever you get time, because we people are lot of time constraints are there with people, क्योंकि हम लोग संसारी व्यक्ति है, हमने सब कुछ छोड़ नहीं दिया है। हमको कमाई भी करनी है, हमको मूवी भी देखनी है, अच्छी मूवी भी देखनी है, 83 मूवी भी देखनी है, हमको पॉलिटिक्स में डिस्कशन भी करना है, हमको खाना भी बनाना है, वी हैव टू डू अवर रूटीन वर्क। तो संसार में रहते हुए हमको सब कुछ करना है, एंड दैट्स व्हाई देयर आर नो टाइम कंस्ट्रेंट्स। व्हेनेवर यू गेट टाइम, और टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है, दैट यू हैव टू डू इट। ओके, सो Ma'am, I थैंक यू have सो one मच। question. हाँ, ओके, Yes. यस। Ma'am, when we do exercise and then yoga, then उसके बाद नींद आती है मैम. So is it good or not? नींद आती है, ये तो मैंने थोड़ा अजीब सा लग रहा है बेटा, क्योंकि योगा एक्सरसाइज के बाद तो नींद नहीं आती है, वैसे नींद तो गायब हो जाती है। इसका मतलब आप योगा और एक्सरसाइज पूरे मन से नहीं कर रहे हो बेटा, आप उसको पूरा मन से कीजिए। और अगर अगर पॉसिबल है ना तो म्यूजिक जरूर ऐड करो, क्योंकि म्यूजिक क्या करता है, अपने को एक जोश देता है। अपन ऐसे ही नहीं तो कर रहे योगासन कर रहे हैं मैम मे बी शी मीन्स कि उसके बाद शी इज एग्जॉस्टेड। नहीं, अगर आप एक्टिव मेडिटेशन करोगे थोड़ा एग्जॉस्ट भी होती है, बॉडी एग्जॉस्ट होती है। तो अगर आप प्राणायाम कर रहे हो एक्सरसाइज के बाद, तो मुझे तो नहीं लगता है बॉडी एग्जॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इवन आई ऑल्सो प्रैक्टिस योगा एवरी डे। मैम आई डू दैट टू। 3 साल से योगा कर रही हूँ, I प्राणायाम thought कर she रही हूँ, meant that. मेडिटेशन कर रही हूँ, बट आई डोंट फील एग्जॉस्टेड। ऑन द अदर हैंड आई फील एनर्जेटिक, I बल्कि don't मुझे either. अपने आप पे गर्व होता है, यस आई हैव डन योगा हाँ मल्टीपल। तो बल्कि ट्रू। वी फील एनर्जेटिक। ओके, यस मैम। नहीं आई हाँ, थॉट शी Okay, मेंट ma'am. दैट। Ma'am, Okay. I have also a question. यस Ma'am, not about meditation, but about other activities. अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे बाकी चीजों में भी इंटरेस्ट है, जैसे लाइक सोशल मीडिया हो गया, मेरा अलग सा टैलेंट है, आर्ट, स्केचिंग, या किसी अदर स्टूडेंट का कुछ भी हो सकता है, जी उसे जी। कॉलेज के साथ साथ अदर चीजों में भी कुछ कर दिखाना है, या उसका इंटरेस्ट है तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि टाइम तो उसने तो आपने जैसा कहा कि निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है टाइम। यस, हाँ तो करो बेटा। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आपको बाकी चीजों में इंटरेस्ट है, और सोशल मीडिया में तो इंटरेस्ट होना ही चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल कभी बच्चों को ये नहीं बोलती कि मोबाइल से दूर रहो। अरे ऐसे कैसे मोबाइल से दूर रहेंगे, उसके बगैर तो काम ही नहीं ना अपना। हमको फेसबुक पे अपनी फोटोज डालनी है, पिक्स डालनी है, अपनी स्टेटस पे अपनी रोज की एक्टिविटी हम डालती है स्टेटस पे। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। और अगर आप में टैलेंट है, और अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर आप मेडिटेशन करोगे ना तो आप अपने टैलेंट को और अच्छे से निखार पाओगे, क्योंकि अ मेडिटेटिव पर्सन ही जस्टिफाइज
ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ईच एंड एवरी वर्क आप जस्टिफाई करोगे कि नहीं मुझे असाइनमेंट करना है फटाफट। और सबसे एक बात मैं सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगी, जो आप लोगों में बहुत गलत आदत है वो है पोस्टपोनमेंट ऑफ वर्क। आप सब में क्या आदत है आज के यूथ्स में, आज असाइनमेंट दिया, मान लीजिए आपके टीचर ने आज असाइनमेंट दिया, आज की तारीख कितनी है 27 दिसंबर, और आपको टीचर ने बोला कि यू हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट बाय 7th of January, आपको 10 दिन का मौका दिया, तो आप क्या बोलते हो, आज ही तो दिया ना मैडम, 7 तारीख को ना कर लूंगा मैं, और वो कर लूंगा 7 तारीख को सुबह या 6 तारीख को रात को फिर आप करते हो, फिर अरे तेरी वो नोट्स दे रहे, अरे तू तेरा व्हाट्सएप दे दे मैं कॉपी कर लेता। डोंट डू दैट। इफ योर टीचर हैज गिवन यू सम वर्क ऑन 27 दिसंबर, डू इट एंड बिकम टेंशन फ्री। कभी कभी जिंदगी में एक आधी 90% टेंशन जबरदस्ती का लिया हुआ है हमने, क्योंकि 6 तारीख को रात को आप करेंगे तो हाँ क्या टेंशन के साथ करोगे, वही 27 तारीख को टीचर ने दिया तुरंत करोगे, और आपको एक सेटिस्फेक्शन लगता है स्टूडेंट हूं ना, आज टीचर ने काम दिया और मैंने कर लिया, एंड यू कैन इम्प्रेस योर टीचर्स आल्सो। कल असाइनमेंट सबमिट कर दो, योर टीचर विल बी इम्प्रेस्ड बाय यू, वाओ व्हाट अ टैलेंटेड स्टूडेंट, व्हाट अ मैंने भी नहीं सुना सर अभी तक मेरा मैथ आप लोग प्लीज अपने ऑडियो देखो, आपका ऑडियो से बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। टेक केयर ऑफ दिस। रूपाली मैम का माइक चालू है। तो आपको ये सब चीजें देखना है कि अगर आपको जो काम दिया है तुरंत कर लो, बिकम टेंशन फ्री। 27 को दिया ना, कर डालो, और फिर यू आपका बाकी का समय आपका है, वो समय आपको जो जरूरी काम है, 7 घंटे कॉलेज करना है, 3-4 घंटे अपने रूटीन काम में लगते, खाने पीने नहाने धोने में, 2-3 घंटे आपके पढ़ाई में, और 6 घंटे आपके सोने में पकड़ लो, बट जो बचे 4 घंटे, दैट इज माई टाइम, मी टाइम, उसको बोलते हैं मी टाइम। ये 4 घंटे सिर्फ मेरे हैं, चलो उसमें से भी और 2 घंटे आपके कुछ काम में या पढ़ाई में जाएंगे, पर 2 घंटे तो आपको मी टाइम मिलता है, उसमें आप अपना जो शौक है वो सब कर सकते हैं। Yes, students, please mute yourself. Yes, madam. From my side, everything is done now. Thank you, ma'am. Thank you, madam. और वंडरफुल Ma'am. सेशन। जब भी ऑफलाइन होगा मैडम आपको आना पड़ेगा, और मेडिटेशन शायद आप आओगे तभी मैं चालू कर I would पाऊंगी। love, ma'am, I would love to take these kinds of sessions. और मैं इसके पहले एक बार अंजुमन कॉलेज में भी जा चुकी हूँ, और हमारे कॉलेज में तो I have made it compulsory. ये हमारे रूटीन में है, हमारे टाइम टेबल में आ गया है मैम। So you can also do at least once in one semester, so that बच्चों को एक बार पता चल जाएगा कैसे करते हैं, so later on they can do it. Yeah. And it is not only good for students, even this meditation is highly beneficial even for teachers. क्योंकि मुझे पता है हम टीचर्स के ऊपर n number pile of tension is there. यूनिवर्सिटी, NEP, नागपुर यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो we can do it, और हमने करना ही चाहिए ये सारी चीजें अब। Okay. Thank you, madam. Thank you so much.